थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या हम ये कहें मैटर वेव्स या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, कई जगह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में मिक्स होके भी आते हैं। आपको 20 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं और आपने अगर रिवीजन चेकलिस्ट कंप्लीट कर रखी है तो आप ये मान लीजिए सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन आप यहाँ पे ईओपी में समझ जाएंगे। सो ये जो केसेस मैं ले रहा हूँ, इन केसेस को भी रिवीजन चेकलिस्ट शॉर्ट नोट में या ईओपी नोटबुक जो आपने अलग बनाई है उसके अंदर जरूर नोट करके रखें। दीज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पिंग यू आउट इन सर्कुलेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। हियर द केस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इन अ collision. Here it says a particle A of mass m and initial velocity v collides with a particle B of mass m by 2 which is at rest. अब देखो ये collision का क्वेश्चन है and then it is saying if the collision is head on and elastic तो ratio of de Broglie wavelengths और E to B after collision निकालना है। अगर collision के बाद हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं if there is A particle there is B particle और B की इनिशियल स्पीड, इसका मास m by 2 है, इसकी u2 0 है और A is moving with the speed u1 which is given as v. सो आफ्टर कॉलिजन अगर इनकी स्पीड्स v1 v2 हो जाती हैं तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के लिए वी यूज v1 एज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। सो अगर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करोगे तो सी व्हाट यू आर गेटिंग, u2 0 है तो सेकेंड टर्म यहाँ 0 हो जाती है, दिस m एंड दिस m by 2. So here it is m by 2 upon 3m by 2 multiplied by v and here it comes out to be v by 3. So this is the velocity of first particle after collision. So v1 हम यहाँ ले लेते हैं v by 3. Second का भी we have direct relation m2 minus m1 upon m1 plus m2 multiplied by u2 plus 2m1 upon m1 plus m2 multiplied by u1. So यहाँ पे first term 0 हो जाएगी and m1 m2 अगर यहाँ substitute करते हैं, see what we are getting in this case, m1 is m and m2 is m by 2. So this 2m upon and here it is m plus m by 2 is 3m by 2 multiplied by v. So it comes out to be, you can see the value we are getting is 4v by 3. So here v2 is 4v by 3. तो अगर लेमडा ए अपॉन लेमडा बी देखें, सो दिस गिवन एज एच बाई पी ए अपॉन एच बाई पी बी, सो इट कम्स आउट टू बी पी बी अपॉन पी ए। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर बी आफ्टर कॉलिजन, इट्स मास इज m by 2, स्पीड इज 4v by 3 divided by it is m multiplied by v by 3. तो v by 3 and m gets cancelled out, it comes out to be 2 by 1. That's the answer for this problem. Thank you, Poshi. Here in this case, we'll be talking about de Broglie wavelength for accelerated electrons. Common case है, straightforward है, formula base भी आपको दिमाग में रखना है. It says electrons are accelerated through potential difference V and protons are accelerated through potential difference 4V. So the de Broglie wavelengths are lambda E and lambda P for electrons and protons. So हमें calculate करना है ratio. So in this situation आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब हम kinetic energy gain की बात करते हैं by accelerating a charged particle, this comes out to be qv. qv is the gain in kinetic energy for charged particles. So in this case अगर हम momentum की बात करें, the same can be written as p square by 2m. So यहाँ पे जो momentum आएगा, p is the momentum gains, this root of 2mqv. और अगर हम de Broglie wavelength चेक करते हैं तो de Broglie wavelength lambda is given as h over p. So here it is h over root of 2mqv. So अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है lambda of electron by lambda of proton, सो आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे H कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. सो मास और वोल्टेज, इट विल डिपेंड अपॉन दिस. सो फॉर प्रोटॉन दिस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वोल्टेज इज गिवन एज 4v, whereas for electron it is root of me multiplied by v. So अब देखिए the value we are getting is 2 root of mp over me. That's the answer for this problem. Thank you, Poji. Students, have a look on another case of relative de Broglie wavelengths. कई बार लगता है कि वेवलेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है तो उनमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है. लुक ऑन दिस बिकॉज ये भी केस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज. इट सेज टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब इट इज नॉर्मल स्पीड, स्पीड इज नॉट अटेनिंग क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट. And now it is saying the corresponding de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2. तो सिचुएशन अगर हम देखें, so there are two electrons moving perpendicular to each other, say with the speed v1 v2.
तो इनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है गिवन है lambda 1 is h over mv1 and lambda 2 is h over mv2. Now it is asking their de Broglie wavelength in the frame of reference attached to their center of mass. तो सबसे पहले इसकी velocity of center of mass आप निकाल सकते हैं. This will be masses बराबर है, it is m v1 j cap plus m v2 I cap upon m plus m is 2m, तो it comes out to be v1 j cap plus v2 I cap upon 2. This is what the velocity of center of mass. अब क्वेश्चन में पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये वाली हमारे पास आएगी दिस v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, दैट्स द वे टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो इट गिव्स v1 j कैप प्लस फॉर फर्स्ट पार्टिकल देखोगे तो इट इज v1 j कैप माइनस v1 j कैप प्लस v2 I कैप डिवाइडेड बाई 2. तो ये वैल्यू फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारे पास आती है v1 j कैप माइनस v2 I कैप बाई 2. सो इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी टेकन एज v1c इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यूज करना है, वी कांट यूज वेक्टर्स. सो दिस विल बी हाफ रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ जाता है. एंड इन दिस केस अगर हम यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें लेमडा ऑफ 1 इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो ये हमारे पास आ जाएगा h अपॉन m v1c, बिकॉज मोमेंटम भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमें लेना पड़ेगा. सो वी जस्ट सी लेमडा 1c विल बी गिवन एज h ओवर m, and if we substitute v here, so it is 2 root of v1 square plus v2 square. और v1 v2 आप यहाँ से निकाल लेंगे, v1 होगा h बाई m lambda 1 एंड यहाँ से हमारे पास v2 आ जाएगा, it is h over m lambda 2. When we substitute the values here, we can see we are getting 2h by m, root of v1 is h square by m square lambda 1 square plus h square by m square lambda 2 square. h और m यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं. lambda 1c we are getting is if you take LCM, this 2 lambda 1 lambda 2 divided by root of lambda 1 square plus lambda 2 square. So this for first. lambda 2c भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि फर्स्ट किसी भी वे में नॉन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, दिस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन. तो lambda 2 भी देख के समझ में आ रहा है कि सेम ही आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप दोनों ले लो, इट विल बी द सेम वैल्यू. थैंक यू पोजी. हियर विल बी कंपेयरिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ. रिलेशन एक ही है, केसेस अलग अलग बन सकते हैं. यहाँ पे इट इज सेइंग अ पार्टिकल ए ऑफ मास एम चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं. पार्टिकल बी ऑफ मास 4m एंड चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट. तो एक्जैक्टली सेम केस है जो हमने पिछले वैरायटी लिया, उसी को रिप्लिकेट करेंगे. लेमडा ए बाई लेमडा भी हमको यहाँ पे चेक करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बात करी थी लेमडा इज गिवन एज h ओवर रूट ऑफ 2m/v. अब रिलेशन को ध्यान में रखिए. सो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी कैन बी रिटन एज मास अलग है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है. तो यहाँ पे हमारे पास Q2 और H कैंसिल हो जाएंगे. दिस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ mb into vb upon ma into va. If we substitute the values for particle B, mass is 4m and the potential difference is 2500. For particle A, the mass is m and potential difference is 50. So here m gets cancelled out, this 50 also gets cancelled out. So here we are getting this as 50 remaining. So ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, this is equals to 2 root 50, or you can take it 10 root 2. That's the answer for this problem.